بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد یونس، آپ کا چاہنے والا، محبت کرنے والا، آپ سے آپ بھی رابطہ اسلامک ویڈیوز کے حوالے سے تو آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھے ہوں گے۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے آپ کو بتائیں گے، جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے انجوائے بھی کر سکیں گے اور گزارنے سے آسانی ہوگی۔ اس سلسلے میں آج ہمارا یہ پہلی ویڈیو ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان میں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے خوش رہنے کا، کہ انسان ہمیشہ خوش رہے۔ خوش رہنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، یہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہم آپ کو دیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں فتح و کامرانی کے آرزو مند ہیں اور ایک آسودہ اور طمانینت بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی عظیم دانشور کے اس قول کو اوپر مکمل عمل کرنا پڑے گا کہ کامیاب زندگی کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ آپ پرعزم اور خوش مزاج ہوں اور ہمیشہ زندگی کے روشن پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ یاد رکھیں کہ کامیابی ہمیشہ خندہ روی سے ہی مشروط ہے۔ خود خوش رہنے والا جو رہنے بند ہے، خوش رو شخص ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں میں بھی اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود خوش ہوگا تو لازمی بات ہے وہ دوسروں کے لیے بھی خوشیاں پیدا کرے گا۔ ایک نوجوان کی مثال ہے کہ ایک نوجوان نے اپنے ایک دوست سے کہا جو کہ ہمیشہ اداس اور مغموم رہا کرتا تھا، اس سے کہا کہ یار آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیشہ روشن پہلوؤں کو دیکھو، کیوں اداس رہتے ہو؟ تو مخدوم دوست نے جواب دیا، جو غم کے اندر ڈال رہتا تھا، اس نے کہا یار میری زندگی میں کوئی روشن پہلو ہے ہی نہیں۔ تب نوجوان نے دوبارہ کہا کہ اگر یہ بات درست ہے تو اپنے سیاہ پہلو جو ہیں ان کے اوپر روغن لگا کے اس کو چمکا لیا کرو، تو کوئی نہ کوئی روشن پہلو ہی نظر آ جائے گا آپ کو۔ اس طرح کارلائل بلند آواز میں پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آدمی جو کام کے دوران مسرت سے گنگناتا رہتا ہے، کارلائل ایک عظیم شخص ہے، اس کے بارے میں کہ وہ اپنی مثال بتا رہے ہیں، اس کے اپنی جو زندگی کے، وہ کہتا ہے کہ جو کام کے دوران بندہ کام کرتے ہوئے گنگناتا ہے، مسرت اپنے خوشی سے رہتا ہے اور اپنے کام کو وقت زیادہ وہ توجہ سے کام کرے گا۔ جب کوئی شخص کسی گیت الاپتے ہوئے کارواں کے ساتھ چلتا ہے تو اسے کہتے ہیں تھکان بھی محسوس نہیں ہوتے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ستارے جو اپنے کروں کے اندر گردش کر رہے ہیں تو وہ بھی سر الاپتے ہیں، ان کے اندر ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ خندہ روی کی قوت تعجب خیز ہے، اس کی برداشت بے پایہ ہے۔ اگر آپ اپنی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی لمحے خندہ روی اور خوش اخلاقی کا دامن نہ چھوڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ خوش اخلاقی کا درس دیا ہے، اور آپ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق تھے، اخلاق کا نمونہ تھے، سب سے اعلیٰ نمونہ۔ آپ خواہ کتنے ہی بلند حوصلہ کیوں نہ ہو، خوشی اور امنگ کے بغیر آپ کا حوصلہ بے جان جسم کی طرح ہے۔ سٹرن کا قول ہے کہ میں اپنی علالت اور کمزوری صحت کا مقابلہ ہمیشہ خوش مزاجی اور خندہ روی سے کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس وقت کوئی شخص مسکراتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہو جاتا ہے۔ خندہ رو، خوش مزاج اور خوش گفتار لوگوں کو ہم تا دیر یاد رکھتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنے حافظے کی کتاب کی ورق گردانی کریں تو ہمیشہ خوش اخلاق اور خوش مزاج لوگ ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک دبلا پتلا مریض سا آدمی تقریر کر کے ابھی بیٹھا ہی تھا کہ یارک شائر کے نکتہ رس اور تیز فہم شخص نے کہا، میرا خیال ہے کہ محترم مقرر جو ابھی تقریر کر کے بیٹھے ہیں ان کی رہائش افسردگی اور نا امیدی کے محلے میں ہے اور ان کا مکان شکایات والی گلی میں ہے۔ میں خود بھی کچھ عرصہ وہاں گزار چکا ہوں اور یقین کیجئے میں جتنا عرصہ وہاں مقیم رہا میری صحت کبھی ٹھیک نہیں رہی۔ ہوا خراب، مکان خراب، پانی خراب، حتیٰ کہ اس گلی کے پرندے بھی افسردگی اور بیزاری کا شکار تھے۔
मैंने उन्हें कभी चहचहाते हुए नहीं देखा। मैं इस पुरस्मुर्दा माहौल से जल्द ही मुतासिर हो गया और हर वक्त गमगीन और उदास रहने लगा। लेकिन मैं इस माहौल को ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और वहाँ से भाग निकला। अब मैंने अपना मकान सब्र और शुक्र वाली गली में ले लिया है और मैं अपने पूरे कुंबे समेत सेहतमंद हूँ। हवा साफ़ है, पानी साफ़ है, फ़ज़ा खुशगवार है, मकान बेहतर है, सूरज वहाँ दिन भर चमकता है, परिंदे खुशी से चहचहाते हैं और मैं ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। मैं अपने मुकर्रर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो शिकायत और बेजारी की गली वाला मकान छोड़ दें। सब्र शुक्र के कूचे में बहुत से मकान किराए के लिए खाली पड़े हैं। मुझे यकीन है अगर मेरे भाई ये वहाँ आ जाएं तो वो अपने आप को एक तब्दील शुदा इंसान पाएंगे। मुझे इनकी हम सगाई पर बेहद मुसर्रत होगी। लिंकन की मेज़ में लिंकन की मेज़ की दराज में हमेशा लताइफ व ज़रैफ़ की एक किताब हमेशा पड़ी रहती थी। जो अमेरिका का सदर सुपर पावर है, उनके जो सदर थे लिंकन, इब्राहम लिंकन, उनकी मेज़ की दराज में हमेशा जो है वो लताइफ व ज़रैफ़ की किताब एक हमेशा रहती थी। और जब भी वो काम करते करते थक जाते थे तो उनका उसूल था कि वो एक बार फिर ताज़ा दम होने के लिए वो लतीफ़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो फ्रेश हो जाते थे। वो दरअसल किसी भी लम्हे अफसुर्दा या मलूल रहने के कायल ना थे। खुश मिजाजी और खुश इखलाकी खुदा की नेमत है, इसलिए इसे बाबरकत कहा गया है। जब रूह अपनी खिड़कियों के सारे पट खोल देती है और रोशनी को अपने अंदर सरायत करने की इजाज़त दे देती है, फिर ये देखने वाले कि अपनी खुशी का सबूत मुहैया करती है, तो वो रूह ना सिर्फ आपको मसरूर करती है बल्कि उसमें भलाई करने की बेपनाह क़ुव्वत पैदा हो जाती है। ऐसे ही मौका पर कहा जाता है, मुबारक हैं वो जो खुद खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। जिस तरह हमारी दवा फ़ायदा पहुंचाती है, इस तरह मायूसी, रंज और फ़िक्र की हालत में खंदा पेशानी और बशाद चेहरा भी पसमर्दगी को मुसर्रत और मुस्कराहट से बदल देता है। अगर हम मुसीबत को खींच के सीने से लगाते हैं तो खुदाई कानून की रूह से रंज और अलम की लहर हमारे तरफ योरश करने लग जाती है। हमारी हस्ती में दाखिल होकर बुलंद से बुलंद और अमीक से अमीक तर होती चली जाती है, यहाँ तक कि हम इसमें डूब के रह जाते हैं। एक नामवर अदीब ने लिखा है, अगर मुझे इस संदूक का पता चल जाए जिसमें मुसर्रत और तबस्सुम कैद हैं, तो मैं फिर वो कुंजी खा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो और जंजीर कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मैं इतनी सख्त कोशिश करूँगा कि यकीनन संदूक मेरे लिए खुल जाएगा। ये काम करके मैं मुसर्रत और तबस्सुम को चारों तरफ ज़मीन और समंदर पर बखेर दूँगा कि वो अपना काम करें और बच्चों के चेहरे उनको मजबूती से अपने अंदर काबू कर लें और मुद्दतुल आयाम तक वहाँ महफूज रखें। इसके बरक्स वही अदीब रंजो गम के मुतल्लिक कहते हैं कि अगर मुझे किसी ऐसे संदूक का पता चल जाए कि जिसमें दुनिया भर के रंजो आलम कैद हैं और तमाम नफ़रतें, हकारतें और झूठ और फरेब समा सकें, तो मैं इन सब को यकजा करके इस संदूक में बंद कर दूं और फिर उसे ऐसे ताला लगाऊं, ऐसा इस तरह मुकफिल करके उसको गहरे समंदर में फेंक दूं कि दोबारा वो बहर ना आ सकें। ख्याल और ख़ास तौर पर पुरमुसर्रत ख्याल एक ऐसी क़ुव्वत है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जाता। इसका अंदाज़ा आप एक और वाक़या इसके लिए, एक आदमी का वाक़या है कि सर कार्निल लेगी कहते हैं कि एक बंदा मेरे शहर में रहता था। उस आदमी को बहुत दिनों से बीमारी थी और तमाम डॉक्टर उसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। वो हर इलाज आजमा चुका था, हर दवा भी परखी जा चुकी थी, लेकिन मरीज़ जो है वो सेहतयाब नहीं हो रहा था, उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब सब तमाम लोग जो है वो यकीन कर चुके थे कि अब मरा के तब मरा। ख़ानदान के तमाम अफराद उसके चारपाई के इर्द गिर्द बैठे थे, सबके चेहरे मखमूम थे और आंखें नमनाक थीं। सबका यही ख्याल था कि कोई घड़ी आती है और उनका अजीज़ उनसे बिछड़ जाएगा। इतने में एक आदमी बीमार से मिलने आया। उसने आते ही मुस्कराते हुए मरीज़ को यकीन दिलाया कि तुम बहुत जल्द ठीक ठाक और सेहतमंद हो जाओगे। बीमारी का क्या है, आदमी ज़िंदगी में कई बार बीमार पड़ता है और ठीक हो जाता है,
तुम्हारी बीमारी तो बहुत ही मामूली है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ चंद ही रोज़ में तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। वो इतनी लतीफ़ और पुर अज़ यकीन मुस्कुराहट से बोल रहा था कि मरीज़ के चेहरे पर इत्मीनान भरी चमक फैलने लगी, और अब वो जो भी जवाब में मुस्कराने लगा था। फिर यादत करने वाले ने कोई ऐसी बात की कि मरीज़ हंसने पर मजबूर हो गया। वो खुल के हंसा और हंसते हंसते उसे पसीना आ गया। दूसरी रात वो शख्स फिर आया और बीमार को हंसाता रहा, यहाँ तक कि एक ही हफ्ते में मरीज़ चंगा भला हो गया। एमरसन का कौल है कि अपने कमरे की दीवारों पर कोई उदास और गमगीन तस्वीर आवेज़ा ना करो, और अपनी हर बातचीत में रंजो गम का जिक्र कम से कम किया करो। इस तरह बीचर ने लिखा है कि उन लोगों को जो चीख चीख के ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी से उनको निकाल दो। लोग समझते हैं कि ये फिरदौसी परिंदे हैं। याद रखें, जो इंसान हंस नहीं सकता वो खुश भी नहीं रह सकता। उसको चाहिए कि एक अपनी देखभाल करे और ऐसे काम किया करे जिससे उसे मुसरत हासिल हो। मगरबी न्यूयॉर्क में एक तबीब रहता था जिसको लोग हंसाने वाला डॉक्टर कहते थे। उस शख्स का नाम डॉक्टर बर्डक था। उसकी आदत थी कि हमेशा मुस्कराया करता था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। उसका नतीजा यह था कि उसके मरीज़ हमेशा तंदुरुस्त रहा करते थे। वो दबाव बहुत कम देता था, मगर मरीज़ों को खुश रखने की कोशिश ज़्यादा करता था। इसीलिए वो अपने तमाम मरीज़ों में ज़्यादा कामयाब था। हंसने की क़ुव्वत हमको एक बड़ी ही दानिशमंद और आला मकसद के लिए अता की गई कुदरत की एक तरकीब है, जिससे अंदरूनी अज़ा की वर्जिश हो जाती है और साथ ही हमें मुसरत भी हासिल होती है। हंसी जो फेफड़ों और बाकी जिस्म में से होती हुई जिगर, मैदा और दीगर अज़ा को तेज़ थरथराहट में लाती है। दिल जल्दी जल्दी हरकत करने लगता है और खून की गर्दिश तेज़ से तेज़ तर हो जाती है। तनफ़ुस बढ़ता है। तमाम निज़ाम में जिस्म में हरारत और चमक पैदा हो जाती है। कहका आमेज़ हंसी से आँखों में चमक आती है, सीना फूलता है और वो नफीस मौजूनियत जिसे सेहत कहते हैं फिर से हासिल हो जाती है। खुशतबा डॉक्टर इसीलिए ज़्यादा कामयाब रहते हैं कि वो मरीज़ को खुश रखने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम लिंकन कहा करता था कि अगर मैं कभी कभार खुलकर हंसने का आदी न हूँ तो यकीनन कब्ल अज़ वक्त मर जाऊँ। इस तरह वाल्टर स्कॉट ने भी लिखा है, मैं तुमसे कुछ तलब नहीं करता, मुझे तुम एक ईमानदार हंसाने वाला शख्स दे दो। हकीकत यह है कि वाल्टर स्कॉट खुद भी बेहद खुशतबा और हंसमुख इंसान था। वो हर किसी से मुस्करा कर मिलता था और उसीलिए दूसरे लोग भी उसी को चाहते थे और उसे प्यार करते थे। रंजीदा मत रहो, हमें ये चाहिए कि हम गम से दूर रहें। एक न एक दिन हम रोशनी के ज़रूर करीब पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि हमारी नज़रें बुलंदी की जानिब हों, हमारी ज़िंदगी और हमारा रवैया रूबा इर्तका हो। ज़मीन की तह में दबे हुए बीज की निस्बत ये शुबा नहीं हो सकता कि बेकार पड़ा है, बल्कि किसी न किसी दिन परवरिश पा के इसमें से तने फूटेंगे, शगुफ़े निकलेंगे, पत्ते, फल, फूल ज़हूर पजीर होंगे। ये अपने दिल से सवाल नहीं कि ये मिट्टी का ढेर है जो इस पे पड़ा है, इसमें से वो क्यों कर गुजर सकेगा। वो शिकायत ही नहीं करता कि मेरे रास्ते में नबातात की जड़ें और इन जड़ों से जकड़ी हुई ज़मीन और पत्थर पड़े हैं, बल्कि ऐसा ऐसा वो बीज जोर लगा के अपना नाजुक सा सर पत्थरों और ढीलों में से निकालता हुआ रोशनी में आकर पत्ते, फूल और फल पैदा कर लेता है। जिन वसीलों और ज़रियों की मदद से हम तारीकी से निकल के शोहरा आफाक बनते हैं और जहालत से निकल के मुहज़्ज़ब व शाइस्ता बनते हैं, खुश मिजाजी के बारिश को पाकर खुशी के आंसू बहाते हुए स्क्रूज पुकार उठता है, मैं नहीं जानता कि क्या करूं, मैं एक परिंदे की मिसाल हूँ, हल्का फुल्का मैं फरिश्ते की तरह खुश हूँ, स्कूल के तालिब इल्म की तरह हशाश बशाश हूँ, हर किसी को खुशी और मुसरत नसीब हो। इस तरह एक और आलिम रेवरेंट कहता है कि मैं एक बीमार औरत को देखने जाया करता था। उसके कमरे में एक गुलाब का पौधा लगा हुआ था जो दरीचे में रखा हुआ था। एक दिन मैंने देखा कि पौधे में सिर्फ एक ही फूल था और उसका रुख रोशनी की तरफ था। जब मैंने उसके मुतल्लिक पूछा तो बीमार औरत ने मुझे बताया
کہ اس की बेटी ने कई दफ़ा इसका रुख अंधेरे की जानिब फेरा, मगर हर दफ़ा फूल ने फिर आके अपना रुख रोशनी की तरफ कर लिया। गोया फूल को अंधेरे से नफरत है। इस फूल ने मुझे ये सबक सिखाया कि मैं कभी तारीकी के रुख की तरफ ना देखूं, बल्कि हमेशा ज़िंदगी के रोशन पहलू की तरफ देखा करूं। याद रखें कि हर काम में कोई ना कोई रोशन पहलू ज़रूर होता है, बस हमें रोशन पहलू ही की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि मायूसी से खतरात बढ़ते हैं, सेहत गिरती है, जिससे रूह कमज़ोर होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा है कि मेरे दफ्तर के नज़दीक एक मकान पर एक मेमार और मजदूर लगे हुए थे। इनमें से एक को मैंने देखा कि वो हमेशा खुश खुश दिखाई देता था। सर्दी हो, अबर हो या सूरज की रोशनी बिल्कुल ना हो, उसके हशाश बशाश चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खेलती रहती थी। आखिर एक दिन मैंने उससे दरियाफ्त किया कि उसकी मुस्कुराहट का राज क्या है। उसने जवाब दिया, ये कोई राज की बात नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छी औरत है। जब भी मैं काम पर आता हूँ तो बड़ी खुशी से मुझे अलविदा कहती है। जब घर पहुँचता हूँ तो मुस्कुरा के मेरा इस्तकबाल करती है और मुझे प्यार करती है। इसके बाद चाय भी तैयार मिलती है। वो मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। इसलिए मेरे दिल में कभी किसी से तुरशरू न होने और सख्त कलामी से पेश आने का ख्याल तक ही नहीं आता मेरे। जे कुक 51 साल की उम्र में लखपतियों जितना अमीर था, मगर अगले ही साल यानी 52 साल की उम्र में अमली तौर पर एक कोड़ी के लिए भी वो मोहताज हो गया। एक कोड़ी उसके पास ना थी। इस उम्र में उसने फिर अज़सुर नो काम करने का इरादा किया और दोबारा से काम शुरू किया और भारी दौलत फिर कमाई। उसने 3000 खैर कर्ज खाहों को, जिनका कर्जा उसके ज़िम्मे था, बाकी कोड़ी कोड़ी अदा कर दी और अपना कॉल पूरा कर दिखाया। एक दफ़ा एक मुलाकाती ने उससे दरियाफ्त किया कि जेकुब साहब, आपने किस तरह फिर दौलत कमा ली, आप तो कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए थे। तो उसने जवाब दिया, ये तो एक सीधी सी बात है कि जो तबीयत में अपने वालिदैन से विरसे में मुझे मिली है, कि इसमें मैंने कोई तब्दीली नहीं की। उसने कहा, बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा पुरुम्मीद और मसरूर रहा हूँ और मैंने रंज व अलम को कभी अपने पास नहीं आने दिया, हमेशा खुश रहा हूँ। मेरा मकबला है कि काम कीजिए और खुश रहिए, यही कामयाब ज़िंदगी का राज है। हमेशा रोशन पहलू को मद्देनज़र रखें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर भी करें। तो अच्छी अच्छी वीडियो के लिए ज़िंदगी गुजारने के बेहतर तरीके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।